एक ही एक ठीक। ओके तो हमारा क्या चल रहा था अभी, लॉगरिथम चल रहा था ना। सो आई थिंक लॉगरिथम में आपको वो बताया गया था नंबर ऑफ डिजिट्स, ओके, और शायद नंबर ऑफ जीरोस नहीं बताया गया था। सो राइट ऑन प्रॉब्लम, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस from this thing it is visible. So write the problem, find the number of zeros after decimal, after decimal, before a significant figure, before a significant figure in number A 3 raised to minus 50, number B 7 raised to minus 50. Okay, so here we are required to find the number of zeros before the significant figure in 3 raised to minus 50. Okay, so first we are doing this problem. Okay, so coming to solution, we are first find the value of log base 10 3 raised to minus 50. ठीक है, and it is given here log 3 base 10 is equals to, it is given in the problem 0.477 and log 7 base 10. So log 7 base 10, yeah, so it is given 0.8451. Okay, so then we have minus 50 multiplied by log 3 base 10. So we have minus 50 multiplied by log 3 base 10 means this will be 0.477. Okay, 0.477. So then just we have to calculate the value of minus 50 multiplied by 0.477. So your answer will be first it will be 0, then 7 into 5, that is 35, then we have 3, then again 7 into 5, 35, this means we have 8, 3, so 5 into 4, this will give you 20 and 23. Okay, so coming to decimal we have 23.850 with negative sign. Okay, so हमने आपको बताया था अगर ऐसा है, if the characteristics of the logarithm is minus c, so there exist c minus 1 zeros. So how many zeros will be? So number of zeros after decimal point, is equals to, we'll have 23, नहीं कैरेक्टरिस्टिक सही करना पड़ेगा ना पहले. ओके, minus 23 minus 0.85. okay,
then we can do one thing. This is equals to minus 23 minus 1, then we have plus 1 minus 0.85. So this will be equals to minus of 24 plus 0.15. okay, so यहाँ पे माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई? So यहाँ पे माइनस सी की वैल्यू क्या आ गई? This is minus 24. So number of zeros will be 24 minus 1, that is 23. So this is your answer. Okay. So any doubt? Any doubt? In this problem? किसी को डाउट है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आप कॉपी कर ले। ओके ओके, अगर आप ये देखो, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इज -23 एंड द मैंटिसा इज -0.85. ओके, बट मैंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ना, मैंने ये पहले ही बताया था, मैंटिसा कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी हैव टू मेक द मैंटिसा पॉजिटिव. So just have add 1 then minus 1. Okay, to balance the expression we have means add 1 then subtract 1. So we have 1 minus 0.85, this will be equals to 0.15, and this is your means characteristics and this is your mantissa. Okay, क्योंकि mantissa कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसका हमने 1 को माइनस किया यहाँ से. ओके, ठीक है, अगर हो गया होगा तो ये नंबर बी अटेम्प्ट करो, नंबर बी अटेम्प्ट करके आंसर बताओ. डू प्रॉब्लम नंबर बी देन टेल द आंसर. ओके, 7 raised to minus 50. Yeah, 7 raised to minus 50. This will be your last class of logarithm. आज आपका ये लास्ट क्लास रहेगा लॉगरिथम का, इसके बाद फिर हम लोग दूसरा पे स्टार्ट करेंगे. हाँ, so let's solve number B. Same process. We have to find the value of log of 7 raised to minus 15 base 10. So then we will have minus 50 into log 7 base 10. Okay. So then we get this is equals to minus 50 multiplied by log 7 base 10. Okay. So the value of the log 7 base 10 is 0.85, 0.8451. So this will be 1 into 5, 5. Okay, 0. Then we will have 1 into 5, 5. Then we will 25. Okay, then we get 2. That is 2. Then we have 8 into 5, 40. So 42. So the decimal point will be here. Okay, 42.2550. Then again with negative sign. So same process. So this will become minus 42 minus 0.255. So same thing, minus 42 minus 1 plus 1 minus 0.255.
Okay, so this is your mantissa, this is your mantissa, and this is your characteristics. So number of zeros after decimal, so number of zeros after decimal point, this is equals to 43 minus 1. Okay, so your answer is 42. So if you find the value of 7 raised to minus 50, then the number of zeros after decimal point will be 42. Okay, so किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ, एनी डाउट? तो ये पार्ट हो गया होगा आपका, है ना? ठीक है, तो इसे इरेज कर जाए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं फिर। लॉगरिथमिक इक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लॉगरिथमिक इक्वेशन, तो इक्वेशन रहेंगे, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये हम डिस्कस किया था क्या एक बार भी? लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्या इसे? बताओ यार, हाँ या ना, कुछ तो बताओगे। ये हमने डिस्कस किया था या फिर नहीं किया था? नो सर, ठीक है। ओके, ठीक है, इसे डिस्कस करते हैं फिर। सॉल्व, जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम देखते हैं फर्स्ट। सॉल्व नंबर 1, लॉग x माइनस 1 मतलब log x बेस 3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, log 3 बेस x माइनस 1 बेस log 3 base x minus 2 is equals to 2. We have to find the value of x. Okay, so कैसे इसे प्रोसीड करेंगे? log का देखो, अगर हमने आपको ये बताया होगा, log b base a is equals to m, so then in exponent form we can write it as b is equals to a raised to a. Okay, ये हमने आपको बताया था। so इस प्रॉब्लम को आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो? This is equals to 3 is equals to x minus 1 whole square. Okay, 3 is equals to x minus 1 raised to 2. Then
if we solve this, then we have 3 is equals to x square minus 2x plus 1. So then we get x square minus 2x minus 2 is equals to 0. और यहाँ से अब क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. You have to find the value of x. So क्या करें यहाँ से, we can use the formula method, that is x is equals to minus b plus minus under root of b square minus 4ac. So then we get x is equals to minus b, that is 2 plus minus under root of b square. B square means 4. Okay. Then we have minus 4ac. So this is plus 8. Okay. Upon 2a. So the coefficient of x square is 1. So we have 2 into 1. Okay. So this will become 2 plus minus. This will be of root 12. So the value of the root 12 will be 2 root 2. No, 2 root 3. Sorry. 2 root 3. Okay. Upon 2. So upon solving this, we have x plus minus root 3. Okay. So we get x is equals to 1 plus root 3. Another one, x is equals to 1 minus root 3, है ना. So हमारे पास दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू 1 प्लस रूट 3, दूसरा क्या आ गया 1 माइनस रूट 3. बराबर. अच्छा, तो फिर आंसर आ गया हमारा. ओके. लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जब भी हमारा आंसर है, ये आंसर आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, है ना, कितना आ रहा है इस प्रॉब्लम में. मतलब ये लॉग जब हम पढ़ रहे हैं तो फिर लॉग क्या होना चाहिए, लॉग भी डिफाइन होना चाहिए ना. ओके. लॉग को भी डिफाइन होना पड़ेगा, क्योंकि x ऐसा वो नंबर लेगा ताकि हमारा लॉगरिथम डिफाइन हो जाए. अगर डिफाइन नहीं हो रहा है, देन दिस इज नॉट अ रूट, तो उसे आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब कैंसिल आउट करना पड़ेगा. बराबर. तो देखो, अगर ये आपको याद होगा, हमने बताया था आपको इसके बारे में, क्या बताया था, ये बताया था x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू, सॉरी, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1. ओके. ये हमने आपको बताया था. सो यहाँ से तो ये हो गया x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2. ठीक है. x की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2. ये तो हमने सॉल्व करके बता दिया. सो देन कमिंग टू सॉल्यूशन, 1 प्लस रूट 3. ओके. ये तो हमेशा 1 से ग्रेटर ही होगा और 2 तो कभी बनेगा नहीं. सो दिस सॉल्यूशन इज एक्सेप्टेड. 1 माइनस रूट 3, ये नंबर क्या देगा आपको, नेगेटिव देगा ना. ओके. लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, x शुड बी ग्रेटर देन 1. x अगर ग्रेटर देन 1 रहा, so then this is not accepted. Okay, so your final answer will be x is equals to 1 plus root 3. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. अब बताओ, डाउट है क्या इसमें, किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है क्या? सर. ठीक है. ठीक है. तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा. आप x की वैल्यू निकालो और मेक श्योर जो हमारा लॉगरिथम है वो भी डिफाइन होना चाहिए. ठीक है. कंपटीशन एग्जाम में क्या पूछेगा ना, आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन. हाँ. सो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, 1 आ गए. सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसके, 1. ओके. आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. चलिए, तो इसी तरह और भी प्रॉब्लम्स है. So we have second.
log 5 minus x base, and it is here x square minus 2x plus 65, okay, is equals to 2. Solve for x, solve for x. So ये भी फर्स्ट वाले की तरह सेम ही है. So if you convert it into exponent form, so then we get x square minus 2x plus 65 is equals to 5 minus x का whole square. ठीक है. So then we have x square minus 2x plus 65, and this is equals to 25 plus x square minus 10x. So x square, these terms are getting cancelled out. So we have 10x minus 2x, that is 8x, and 8x is equals to how much? This will be minus 40. So we are getting x is equals to minus 5, है ना? x is equals to minus 5. So क्या minus 5 इसे satisfy कर रहा है? आप देखो, अगर minus 5 आप यहाँ substitute कर रहे हो बेस में, तो कितना आएगा? We are getting base as 10, so log base 10 is accepted, बराबर. और अगर आप यहाँ substitute करोगे, then we will get this term positive. अगर x की वैल्यू अगर आप -5 substitute कर रहे हो, तो नंबर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. That means x is equals to -5 क्या हो गया? एक्सेप्टेड हो गया, है ना? तो ये इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा x is equals to -5. So we have new problem, x raised to log x base 3 is equals to 9. x raised to log x base 3 is equals to 9. यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है. तो कैसे करेंगे? Simply just take log on both sides. Okay, log base 3 on both sides. So upon taking log both sides, we have, suppose we have taken log base 3, okay, and it is equals to x raised to log x base 3 is equals to log 9 base 3. So we will have, and this is your power. So power क्या आएगा? सामने आएगा. So we have log x base 3 multiplied by log x base 3, this is equals to whole square is equals to, अच्छा, log 9 base 3, 9 means 9 मतलब क्या हो जाएगा? This will be equals to 3a square, so this will give you 2, okay. So then we have, you have log x base 3, ये आएगा एक बार √2, okay. और एक बार फिर क्या लिख सकते हो? log x base 3 को आप ले सकते हो -√2, है ना? मतलब प्लस माइनस √2 दोनों आ सकती है ना, है ना? So from here, if you convert into exponent form, so x is equals to how much? 3 raised to √2, and here x is equals to 3 raised to minus of √2. ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा. और दोनों एक्सेप्टेड होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना. 3 raised to √2 भी पॉजिटिव है, 3 raised to minus √2 भी पॉजिटिव है. ठीक है, तो बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है? ये समझ में आ रहा है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ये पढ़ाया जा रहा है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंपटीशन में समझ के रखो, यहाँ से प्रॉब्लम आते हैं. इस बार भी जो एडवांस के प्रॉब्लम थे
जो आईटी के पेपर आए थे उसमें इसी टाइप के एक प्रॉब्लम थे, है ना? ठीक है, नो डाउट। चलिए ओके next problem number 4. Solve for x log x base 2, that is root under of log x base 2 minus log of 8x base 2 plus 1 is equal to 0. ठीक है, plus 1 is equal to 0. यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे करेंगे, है ना? एक तो दिक्कत वाली टर्म आ गई, रूट वाली, है ना? तो कैसे प्रोसीड करेंगे? हमने क्या सोचा, वी कैन राइट इट एज log x बेस 2 रूट है माइनस, एंड इसे अगर आप ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ log 8 बेस 2 प्लस log x बेस 2, ठीक है? और ये लिख लिया हमने प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब log mn. So log mn is equals to log m plus log n. Next, we can write it as log x base 2 minus, अच्छा log 8 base 2 क्या हो जाएगा? log 8 means 2 raised to 3, so we will have 3 minus log x base 2, then we have plus 1 is equals to 0. बराबर? अच्छा, अब हमने क्या किया, देखो यहाँ पे एक तो रूट है, एक विदाउट रूट है। सो हमने ये सोचा क्यों ना log x बेस 2 को y पकड़ लें। लेट log x बेस 2 को हमने y एज्यूम किया। y एज्यूम करने से प्रॉफिट क्या हुआ? नहीं, y स्क्वायर एज्यूम करते हैं, y स्क्वायर करने से क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी रूट अंडर ऑफ log, मतलब रूट अंडर ऑफ y स्क्वायर, दैट इज ये बन जाएगा हमारा y, ओके, y and minus y square, and you have minus 3 plus 1, this will be minus 2 is equals to 0, है ना? अब तो एक्सपोनेंट में आ गया, मतलब क्वाड्रेटिक आ गया। सो अभी आप क्या लिख सकते हो? वी कैन राइट y स्क्वायर माइनस y प्लस 2 is equals to 0. Next we can solve this. So we have y square minus 2y प्लस y प्लस 2, नहीं बना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है चलो, मतलब इसे फॉर्मूला मेथड से हमें सॉल्व करना है। क्या करना है? इसे फॉर्मूला मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है, ओके। सो कैसे करेंगे? जस्ट फॉर्मूला मेथड लगा दो, क्योंकि ये फैक्टर तो हो नहीं रहा है, ओके। माइनस 2 होता तो फिर वो बन जाता, लेकिन बना नहीं। एक मिनट, माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2, चलो नहीं सही है। सो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 1, ओके, माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, अपॉन 2a, ऐसा कुछ। सो वी गेट y इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस, अच्छा 8, 1 माइनस 8 दैट इज रूट अंडर ऑफ माइनस 7, है ना, अपॉन 2। अच्छा, रूट अंडर ऑफ माइनस 7 दैट मीन्स दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रूट, है कि नहीं? या फिर इमेजिनरी रूट्स कह सकते हो आप, बराबर है। सो अगर इमेजिनरी आ रहा है, y की वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाए
तो फिर log x बेस 2 की वैल्यू कहाँ से आएगा, है ना, वो तो डिफाइन ही नहीं करेगा। ओके ये क्या आ गया, कॉम्प्लेक्स रूट आ गया ना। अगर y की कोई रियल नंबर आता, कोई वैल्यू आता, तो फिर हम लोग सोच भी सकते थे, लेकिन अभी क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, मतलब अंडर रूट ऑफ -5 है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड। सो अगर ये डिफाइंड नहीं है तो फिर सोल्यूशन क्या लिख दोगे, आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। दैट मीन्स नो सच वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट फॉर विच द गिवन कहां से समझ में नहीं आया आपको, बताओगे कहां से समझ में नहीं आया पूरा, लास्ट पार्ट क्या, कहां से नहीं समझ में आया बताओ। यस सर यस सर यस सर नहीं करो, ये कहां समझ में नहीं आया, फर्स्ट पार्ट, दिस पार्ट, मिडिल पार्ट, लास्ट पार्ट, कहां समझ में नहीं आया। फर्स्ट पार्ट ओके ओके ठीक है, स्टार्टिंग से देखो। पहले हमारा कुछ ऐसा था log x बेस 2, अभी हमने क्या किया, नेक्स्ट log 8x है ना, so this is convert into log mn, so I am writing log m plus log n, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, log 8 बेस 2 plus log x बेस 2 plus 1। नेक्स्ट log 8 base 2 is equals to 3 because 8 can be written as 2 raised to 3, so this is equals to 3, so we get the expression like root under of log x base 2 minus 3 minus log x base 2 plus 1, then I have taken log x base 2 as y square, ठीक है। y square क्यों लिया, क्योंकि ये देख रहे हैं हम, ये क्या किस में आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, so we get y minus y square then minus 3 plus 1, this will be minus 2, okay ये क्या बन जाएगा हमारा -2, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, -2 बनने के बाद हाँ नेक्स्ट क्या किया हमने, वी हैव टेकन द माइनस कॉमन, सो माइनस से या फिर मल्टीप्लाई कर लो, सो वी हैव y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो अभी हमें क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए, सो y की वैल्यू हमने क्या लिखा, y इज इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये कौन सा मेथड है, फॉर्मूला मेथड। सो अब y की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट ऑफ -7 या अंडर रूट ऑफ कुछ भी अगर माइनस है ना, सो वो रियल नंबर में डिफाइन नहीं होती है ना, वो क्या होती है, वो तुम्हारा डिफाइन नहीं होता है, इट इज इमेजिनरी नंबर है ना, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर है ना। या फिर आपने ये पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन वी हैव द रूट्स आर इमेजिनरी, है कि नहीं। सो अगर y की वैल्यू अगर इमेजिनरी आ जाए तो y स्क्वायर भी इमेजिनरी आएगा, सो यहां से क्या log x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू ही नहीं फाइंड आउट होगा ना, y इमेजिनरी आया, y स्क्वायर इमेजिनरी आया, log x बेस 2 है ना, log x कभी भी हमारा इमेजिनरी नंबर नहीं बन सकता है, log पार्ट क्या होगा हमेशा रियल पार्ट, ओके। सो इसके लिए नो सोल्यूशन, मतलब x की कोई भी ऐसी रियल वैल्यू नहीं होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब आएगा समझ में थोड़ा बहुत, यस सर, ठीक है, इसे कॉपी कर लो। ओके सही हो गया हमारा, फिर आगे 4 नंबर तो हो गया ना।
अब आपका लेवल थोड़ा सा धीरे धीरे प्रॉब्लम का लेवल बढ़ते रहेगा। हाँ ठीक है, प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेम प्रॉब्लम सॉल्व फॉर एक्स नंबर 5 log x बेस 10 अपॉन 2, ठीक है, log x बेस 2 अपॉन 2 रेस टू, ये दिया गया है log x बेस 10 स्क्वायर है, मतलब ये ऐसा है log x बेस 10 का होल स्क्वायर, ओके, log x बेस 10 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर बेस 10, यहाँ पे ये x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर हमारा नंबर में है, -2 इज इक्वल टू log ऑफ रूट x बेस 10, बराबर, रूट x बेस 10। log रूट x बेस 10, ये सॉल्व करने के लिए आपको बताया गया है। अच्छा, प्रॉब्लम पहले लिख लो अच्छे से, ठीक है, प्रॉब्लम लिख लो। अब ध्यान से देखना है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक तो ये मेथड रहा कि ना जब भी ऐसा रहेगा तो लॉग ले लेना बोथ साइड, या फिर हमने ये देखा अगर ये रूट एक्स है तो रूट एक्स को आप लोग क्या लिख सकते हो, रूट एक्स कैन बी रिटन एज एक्स रेज टू हाफ, ओके, फिर क्या होगा, ये हाफ सामने आएगा, सो देन दिस द राइट हैंड एक्सप्रेशन will become log x base 10 upon 2, ठीक है, ये क्या आ गया, log x base 10 upon 2 आ गया, है ना, ये समझ में आया ना, log root x base 10, log root x base 10 है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे हमने क्या देखा, इसकी पावर क्या रहेगी, कुछ नहीं है, मतलब 1 है ना, और जब आप एक्सपोनेंट पढ़ रहे होगे सो अगर a raised to m is equals to a raised to अगर n दिखा आपको कहीं पे, then we can write m is equals to n, है ना, ये आपका लॉ ऑफ इंडाइसिस या फिर लॉ ऑफ सर्ट्स या फिर एक्सपोनेंट में ऐसा कुछ था, बराबर। तो अब तो ये हो गया, अब क्या लिख सकते हो, then we can write जो एक्सपोनेंट है हमारा that is log x base 10 का होल स्क्वायर माइनस log x स्क्वायर बेस 10 माइनस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बन जाएगा, सो वी कैन राइट log x base 10 whole square plus log x square base 10 minus 2 is equals to 1, ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। अगर ये पार्ट समझ में आ गया तो फिर अब प्रॉब्लम में कुछ भी अब समझने लायक नहीं है ना, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट यही था, हम यहाँ पे एक्सपोनेंट को सेम कर रहे हैं ना, पावर को सेम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था। चलिए तो ठीक है, मान के चले, डाउट नहीं है। So, अब क्या आ गया, देन वी कैन राइट log x बेस 10 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू log x बेस 10 देन -3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब तो आप ही बता दोगे, सर एक काम करो, आप log x बेस 10 को क्या ले लो, y पकड़ लो, है ना, इसे आप क्या कर लो, y पकड़ लो, y पकड़ने से क्या होगा, दिस एक्सप्रेशन विल गेट कन्वर्ट इनटू क्वाड्रेटिक, सो वी हैव y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके, देन वी कैन राइट y स्क्वायर प्लस 3y माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, है ना। चला, बहुत साल बाद एक एक्सप्रेशन अच्छा है ना, फैक्टर मेथड में आ गया, so take common y, so we have y plus 3 minus of 1, so we have again y plus 3 is equals to 0, so कहानी क्या आ गया, y की वैल्यू या तो 1 हो गया
या फिर y की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों पॉसिबल है। सो अगर y की वैल्यू 1 है, अगर 1 है तो सो y इज इक्वल्स टू क्या था, log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 1। सो x इज इक्वल टू 10, एक्सपोनेंट में कर लिया कन्वर्ट, तो यहाँ पे क्या आ गया, log x बेस 10 इज इक्वल्स टू -3। ओके, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है यहाँ पे 10 रेज़ टू -3। और x क्या है, पॉजिटिव है ना, ये आपका 10 रेज़ टू -3 पॉजिटिव है ना, बिकॉज इसका मतलब 1/1000 होता है। क्लियर। सो हमारे पास दो सॉल्यूशन है, x इज इक्वल्स टू या तो आपका 10 हो जाए या फिर क्या बन जाए वो, x की वैल्यू -3। ओके ठीक है, तो किसी को डाउट है बताओ, किसी को डाउट है इसमें बताओ, एनी डाउट? नो सर, चलिए वेरी गुड। इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको तो पहले लॉगरिथम का फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ, लॉगरिथम का फंडा क्लियर है तो जाकर ये सब प्रॉब्लम बना सकोगे। सो नेक्स्ट नंबर 6, solve for x log base 10 1 plus 2 raised to x plus x is equal to x into log 5 base 10 plus ये आ गया तुम्हारा log 6 base 10, 6 दिख रहा होगा, log 6 base 10। ठीक है, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालना है। अभी सोकर उठी हो क्या साइली? अभी आ रही है क्लास में? आधे घंटे बाद, आधे घंटे क्या 10 मिनट बाकी होगा प्लस। ठीक है चलो, सो इसे हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ओके, सो ये देखो एक तो दिक्कत क्या है ना, प्लस, मेन क्या दिक्कत है, प्लस का है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम रहे ना, प्लस का रहे मतलब लॉग है, ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक तो नंबर है ये, फिर ये x के टर्म है ये सब। सो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, अगर हम किसी तरह भी इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर दें, log m बेस 10 इज इक्वल्स टू log n बेस 10। सो यहाँ से आप बता सकते हो कि m की वैल्यू n होगा, है ना, m की वैल्यू क्या बन जाएगा, m बनेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, पहला तो ये प्लस है, इस प्लस को हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा देखो क्या करेंगे, इसे तो कुछ मत करो, ये जैसा है वैसे ही। ये जो x है, अच्छा x के साथ क्या है, x इंटू 1। ओके, मतलब कुछ नंबर जैसे 5 है, सो अगर 5 है तो देन 5 इंटू 1 बन गया। ओके, सो सिमिलरली अगर x है, सो x इंटू 1, और 1 के प्लेस में हमने लिख दिया log 10 बेस 10, है ना। 1 के प्लेस में हमने क्या लिखा, log 10 बेस 10, बिकॉज log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इज इक्वल्स टू, यहाँ देखना ये x क्या आएगा, x जाएगा 5 के ऊपर, ये जो नंबर है ये क्या जाएगा, पावर में जाएगा ना, पावर में,
So then this will be equals to log base 10 5 raised to x, ओके, प्लस ये बन जाएगा तुम्हारा log 6 base 10, बराबर है। नेक्स्ट सेम थिंग हम इसके साथ करने वाले हैं, सेकेंड एक्सप्रेशन के साथ। इस x को एक्सपोनेंट को पावर के पास ले जाएंगे, सो देन वी गेट द टर्म लाइक दिस, प्लस log base 10 we have 10 raised to x, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, ये क्या है, log m base 10 प्लस log n base 10 है ना, ये क्या लिखा हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखिए, log m base 10 प्लस log n base 10, सो ये बन जाएगा तुम्हारा log base 10 m प्लस n, सॉरी mn, सो वी हैव 5 raised to x multiplied by 6, okay, 5 raised to x multiplied by 6। सिमिलरली इसके साथ भी वही होगा, अच्छा बेस 10 यहाँ नहीं लिखा, सो वी हैव log बेस 10 1 प्लस 2 raised to x, और यहाँ पे हमने लिख दिया 10 raised to x, ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू log बेस 10, और ये लिख दिया 5 raised to 6 into 6। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये किस फॉर्म में है, log m बेस 10 इज इक्वल्स टू log n बेस 10, सो क्या यहां से आप बता सकते हो कि ना दिस इज इक्वल्स टू m इज इक्वल्स टू n, सो वी कैन राइट 1 प्लस 2 raised to x multiplied by 10 raised to x is equals to 5 raised to x into 6, ठीक है, into 6, ये हो गया। अब आगे देखो, ये जो 10 की पावर x है ना, सो क्या आप इसे लिख सकते हो, 10 की पावर x को क्या इसे लिख सकते हो, 5 raised to x into 2 raised to x, है ना, 10 raised to x को हमने क्या लिख दिया, 5 raised to x multiplied by 2 raised to x, देन इस सारे एक्सप्रेशन को यहाँ पे ट्रांसफर कर लो, है ना, सारे एक्सप्रेशन को ट्रांसफर कर लो, या फिर आप ये कर सकते हो 5 raised to x को कैंसिल आउट कर देते हैं ना, यहाँ भी है यहाँ भी है, बराबर, 5 raised to x को हमने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन मैथमेटिकली ये सही नहीं है, बिकॉज यहाँ से एक रूट्स निकल जाएगा, ओके, मैथमेटिकली ये सही नहीं है, आप कैंसिल तो कर सकते हो, लेकिन इस प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो एक छोटा सा प्रॉब्लम दिखाते हैं आपको, है ना, सपोज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x है, सॉल्व फॉर x, तो आप क्या करोगे, आप अपना दिमाग लगाओगे कि एक x यहाँ से उड़ाओगे, एक x यहाँ से हटा दोगे, है ना, मतलब कैंसिल आउट करोगे, सो कैंसिल आउट करने के बाद एक आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 5, आपने किया ना कैंसिल आउट, ये आएगा। लेकिन ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है ना, जितने, तो इसके रूट्स कितने आने, मतलब कितने आने चाहिए, 2 रूट्स आने चाहिए, लेकिन आया कितना आपके पास, 1, तो एक रूट कहाँ गया, एक रूट आपने अपने मन में उसको मतलब कट कर दिया। तो बेसिकली इस टाइप का प्रॉब्लम को हम ऐसे करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल्स टू 0, देन टेक x कॉमन, so we have x minus 5 is equals to 0, so we have either x is equals to 0 or x is equals to 5। अब देखो कितने रूट्स आ गए, 2 आ गए, हमने क्या किया, यहाँ पे कट नहीं किया, यहाँ पे भी वही चीज हम कर रहे थे, कट कर रहे थे, तो फिलहाल अभी हम कट नहीं करते हैं, है ना, फिलहाल अभी इसको हम कट नहीं करते हैं, तो आप भी भविष्य में कट मत करना, जब भी आप इक्वेशन ऐसा आपको मिले तो कभी भी आप कट मत करना। लेकिन यहाँ पे कट करने से कोई मतलब नहीं था, लेकिन इस जब भी ऐसा एक्सप्रेशन रहे तो कभी भी आप कट मत करना, है ना, कट करोगे तो आपका एक रूट दिक्कत हो जाएगा, एक रूट कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर जो आना चाहिए वो आंसर आपका नहीं आएगा। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इस एक्सप्रेशन को क्यों हम यहाँ पे ले आए, सो देन आई कैन राइट माइनस दिस इज इक्वल टू 0, है ना, then we can do one thing, take common 5 raised to x, so upon taking common 5 raised to x we have 1 plus 2 raised to x
मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो पार्ट हो गए, या तो 5 raised to x 0 बन जाए, या तो 5 raised to x 0 बन जाए, या फिर 1 plus 2 raised to x मल्टीप्लाइड बाई 2 raised to x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 बन जाए। okay. ठीक है, इसका तो हम बाद में देखते हैं ना, इसका हम बाद में देखते हैं। अभी इसे हम सॉल्व करें, कैसे करोगे सॉल्व? वही 2 raised to x को y पकड़ लो, सो आपने y पकड़ा तो वी हैव 1 plus y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो देन वी हैव y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर आपने क्या लिख लिया, y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर देन y कॉमन, सो वी हैव y प्लस 3 देन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास इक्वेशन आ गई, या तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी या फिर y की वैल्यू माइनस 3 हो जाएगी। बराबर है, y क्या था हमारे पास, y था हमारा 2 raised to x इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे भी वही था 2 raised to x इज इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, सो यहाँ से देखो आपको तो एक वैल्यू मिल गया कि ना x की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि 2 raised to x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 1। यहाँ पे कैसे लोगे, यहाँ पे आप कैसे लोगे, x की वैल्यू कैसे लोगे, मतलब कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आप -3 को एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना 2 की पावर में समथिंग। सो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, लॉग ले सकते हैं। अगर आपको ये नंबर की वैल्यू चाहिए, नंबर में चाहिए, तो देन वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड। सो अपॉन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव log 2 raised to x। लॉग क्यों, इसे लॉग के यहाँ पे इसे लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। लॉग के फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू लॉग -3 बेस 2, ये हो गया ना, log -3 बेस 2। ठीक है, लेकिन नेगेटिव कभी लॉग डिफाइन नहीं होता है, तो ये चला गया है ना, ये आंसर हमारा नहीं होगा। ओके, 2 raised to x की वैल्यू -3 नहीं आएगी। बराबर, अच्छा बात कर रहे हैं यहाँ। सो इसे अगर आपने लॉग के फॉर्म में एक्सप्रेस किया, क्या लिखोगे, log 0 बेस 5, तो 0 तो कभी होता नहीं, आपने इतना लॉग पढ़ा है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या बनने वाला है, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 1 है ना। ठीक है, कितने पॉसिबिलिटी थे, 1 2 3, 3 पॉसिबिलिटी थे, बने कितने, एक ही बने ना, एक ही बने, और 1 डिफाइन करेगा, 1 के लिए डिफाइन करेगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल्स टू 1। बताओ, किसी को डाउट है इसमें? अगर समझ में आए, आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो काफी बड़ी बात है। ओके, ठीक है, सर कॉपी कर लो जाता फटाफट।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो ये हो गया होगा। अच्छा, अभी एक प्रॉब्लम बताया था कुछ ऐसा, कितना नंबर है मुझे याद नहीं था, वहां पे एक चीज बताना भूल गया। एक्सपोनेंट में क्या था, ऐसा कुछ log x बेस 10 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 10 माइनस 10, नहीं माइनस 2 था, इज इक्वल्स टू ये कुछ ऐसा था log रूट एक्स बेस 10, है ना। फिर इसे हमने कन्वर्ट करके लिखा था log x बेस 10 अपॉन 2, है ना, और पावर लिख दिया था 1, ऐसा कुछ था। तो इसका हमने सॉल्यूशन बताया, निकाला था। निकालने के बाद कितना आ रहा था, x की वैल्यू 10 आ रहा था, शायद यही आ रहा था क्या, x की वैल्यू 10 आ रहा था क्या इस प्रॉब्लम में, x की वैल्यू 10 आ रहा था। आंसर क्या आ रहा था इसका, यस सर, ठीक है चलिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो एक चीज, अगर ये पार्ट जो बेस है ये हमारा अगर 0 बन जाए तो भी तो सॉल्यूशन मतलब ये करेगा ना, एग्जिस्ट करेगा ना। ये मतलब विदाउट सॉल्व करने के, मतलब बिना सॉल्व किए हम बता रहे हैं, अगर बेस हमारा 0 बन जाए सपोज, बिकॉज 0 की पावर समथिंग, 0 की पावर समथिंग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना, मतलब रियल नंबर होने चाहिए। सो एक तो हो गया, अगर x की वैल्यू अगर आपने 1 पुट किया, मतलब जो बेस है उसे हमने अगर 0 बना दिया, एक सोल्यूशन ये आ रहा था। अगर आपने x की जगह 1 पुट किया तो कितना आ गया, log 1 बेस 10 दैट इज ऑब्वियसली 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, ये आ गया 0। तो 0 की पावर माइनस 1 कुछ भी करो भाई, बस तो 0 ही आएगा ना। तो क्या आ गया 0। तो यहाँ पे एक 0 भी, मतलब x इज इक्वल्स टू 1 भी सॉल्यूशन होगा। तो जहां पे लिखे होगे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ठीक है, उसके साथ और एक लिख लेना, x इज इक्वल्स टू 1 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, है ना, ये भी इसका सॉल्यूशन होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमने उसे वहां पे नहीं दिखा हमें, है ना, मतलब यूज नहीं किया हमने वहां पे। तो ये चीज आप कॉपी कर लो, x इज इक्वल्स टू 10 तो था ही आंसर, और एक आंसर लिख लेना, x इज इक्वल्स टू 1। चलिए और एक प्रॉब्लम है, देख लो, ये लास्ट प्रॉब्लम है, ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। इसके बाद लॉगरिथम के ऊपर आप लोग को असाइनमेंट मिल जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट मिल जाएगा, वहां से आप बनाना, और अगर दिक्कत हो तो फिर तो है ही। इफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 81, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 रेज टू 81। साथ में ये प्रॉब्लम बड़ा है, इसे इरेज कर रहे हैं, इसका काम नहीं है अभी। साथ में ये बताया जा रहा है, एंड log x बेस 10 मल्टीप्लाइड बाय log y बेस 10 प्लस log y बेस 10 log z बेस 10 प्लस log x बेस 10, then you have log z बेस 10 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 468, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log x बेस 10
होल स्क्वायर प्लस log y बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log z बेस 10 का होल स्क्वायर, ये ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये गिवन है हमारे पास, दो इक्वेशन की वैल्यू दी है और ये वैल्यू निकालना है। ओके, अगर आप ध्यान से देखो, सपोज एक तो आपके लिए, उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या सोचा, या हमने देखा कि अगर इसे हम a पकड़ लें और log y बेस 10 को क्यों ना हम c पकड़ लें, b पकड़ लें, साथ में log z बेस 10 को c पकड़ लें। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल्स टू 468, है ना, ये गिवन है हमारे पास। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये क्यों दे रखा है, ये वाले, अगर इसे आप ध्यान से देखो, सपोज अगर हमने यहाँ पे log लगा लिया इस एक्सप्रेशन में, अगर आपने बोथ साइड log लिया, so we have log base 10 xyz is equals to log base 10 10 raised to 81, so then we have log x base 10 plus क्या बन जाएगा, log y base 10 plus log z base 10, ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारा 81। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू 81, ये दिया हुआ है। आपके पास ये भी है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, एंड हमारे पास a प्लस बी प्लस सी भी है। निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला आपको याद है ना, वो फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी बी सी ए सी। ओके, सो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 81 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 468, इसके आगे हम नहीं बना रहे हैं ना, इसके आप देख लेना। सो यहां से तो आप निकाल ही लोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, बराबर। देखो सिंपल था, बस वो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए, थोड़ा सा देख के समझ में आना चाहिए। ओके, तो किसी को डाउट है यहाँ पे बताओ, एनी डाउट? डाउट नहीं है, चलिए वेरी गुड। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ तक कॉपी कर ले, बाकी देखते हैं। बाकी मतलब लॉगिथम खत्म हो गया अब। और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली एपी सोच रहे थे, क्योंकि एपी आपका स्टडी भी किया हुआ है 9-10 में, शायद मोस्ट प्रॉब्ली क्लास 10 में था शायद ये, ठीक है। तो मे भी एपी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में एपी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं ना। तो ये जो फॉर्मूलाज उनवाज थे थोड़ा सा देख लेना, ओके। जो फॉर्मूलाज थे ना 9-10 में जो पढ़े हो वो एक बार देख लेना, ठीक है। ठीक है, फिर लेक्चर अभी एंड करते हैं ना। और किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? ओके ठीक है फिर, ओके ठीक है, चलो फिर हाँ लेक्चर एंड करते हैं। ओके बाय।